Also, I would like to request Honorable Supervisor Sir to escort our today's chief guest, and I would like to request Honorable Principal Sir to welcome our today's chief guest. Please give them a big round of applause. On behalf of Sindhuratna Parivar, I extend a warm and heartfelt welcome to our respected parents and esteemed guests. Thank you for being a part of this beautiful journey. Welcome them with a huge round of applause. They say life is a symbol of hope and positivity. And to seek blessings and to illuminate this beautiful evening, I would like to request all the honorable dignitaries of the dais to kindly come forward for the garlanding the portrait of Lord Bhagwan Jhulelal, Bharat Mata and late Srimati SVC, our Mother God, along with Deep Prajwalan, and also for lighting the ceremonial lamp.
members for your unwavering support for progress of our school. And Shamlal Panjwani, Mr. Shamlal Panjwani sir, to please come forward to felicitate our today's PTA members. PTA members from nursery to standard 3rd. Mrs. Asha Manoj Badane, PTA member of standard nursery. Mrs. Asha Manoj Badane, Priyanka Vishal Bhamre,
sir. Please give. Please give them a huge round of applause. Personality with us, Mr. Shamlal Panjwani sir from Ulasnagar. I request our chairman sir and our ex-chairman sir to felicitate Mr. Shamlal Panjwani sir. Please give them a huge round of applause. Tradition, we believe Atithi Devo Bhava. The guest is equivalent to God. It is our honor to welcome our today's chief guest, Dr. Jitesh Pathak sir, Ayurveda Karya, Chairman, Secretary Club Global Trust Village. I request our President sir and our Chairman sir to please felicitate our today's chief guest, Dr. Jitesh Pathak sir. Please give them a big round of applause. Please give them a huge round of applause. Personality with us, Mr. Shamlal Panjwani sir from Ulasnagar. I request our chairman sir and our ex-chairman sir to felicitate Mr. Shamlal Panjwani sir. Please give. जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, जब इंसानियत का मार्ग भटक जाता है, तब इस धरती पर अवतार होता है प्रेम का, नीति का और लीला का। मक्खन से भरा हाथ, सर पर मोर पंख और बांसुरी की मधुर धुन। Can anyone guess who this divine personality is and what our theme could be? Can anyone guess what our theme could be? Yes, our today's theme is Krishna Leela. Krishna Leela is not just a collection of stories. It's a celebration of love, wisdom and duty. Tonight is not just an event. It's a heartbeat of a year full of dreams, dedication and determination. Where talent meets passion and efforts turn into excellence. I'd like to request our today's chief guest, Dr. Jitesh Pathak ji sir, to kindly come forward and address the gathering with a motivational word. गुड इव्हनिंग सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि स्पेशली सगळे बच्चे कंपनी खूप सुंदर दिसतात तुम्ही सगळ्यांसाठी या सगळ्या गोड मुलांसाठी आपण सगळे एकदा टाळ्या वाजवूयात खूप सुंदर मी सर्व आपल्या बच्चे कंपनीचे मी अभिनंदन करतो की आजच्या या कार्यक्रमात आपण पार्टिसिपेट करत आहात खूप खूप अभिनंदन आणि पालकांचे देखील मी अभिनंदन करतो की आपण आपल्या मुलांचे खूप चांगल्या पद्धतीने संगोपन करत आहात असेच करत राहा आपले देखील अभिनंदन आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सिंधुरत्न शाळेचे सगळे स्टाफ खूप मेहनतीने आजचा हा कार्यक्रम घेतात त्यांचे देखील मी अभिनंदन करतो मी डॉक्टर आहे म्हणून एक सोपी आणि छोटेसे टिप्स देतो की आरोग्याच्या बद्दल की रेग्युलर जेव्हा दवाखान्यात पेशंट लहान मुलं माझ्याकडे येतात तर त्यांच्या कंप्लेंट्स बऱ्याच आहेत पण त्यातल्या मुख्य कंप्लेंट्स त्यांच्या
चुकीच्या लाईफस्टाईलमुळे, चुकीच्या खाण्यामुळे. तर ते आपण बारीक बारीक गोष्टी आहेत त्या आपण बदल केल्या तर त्यांच्या पूर्ण जीवनामध्ये त्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे. पालकांना मी एकच गोष्ट सांगतो की तुम्ही मुलांना शिकवताय, मुलांची फीस भरताय, मुलांचे सगळे हाऊसहोल्ड पुरवताय, पण हे केव्हा तुम्हाला यश मिळणार आहे जेव्हा तुमच्या मुलांचं आरोग्य कायम चांगलं असणार आहे. आरोग्याचा जो पाया आहे तो लहानपणापासूनच आपल्याला आवश्यक आहे. जसं अभ्यासाचा पाया अगदी ज्युनियर KG पासून, नर्सरीपासून तुम्ही त्यांच्या शाळेची अभ्यासाची काळजी घेताय, तसं त्यांच्या आरोग्याची काळजी ही आत्तापासूनच आपण घेतली तर ते होणार आहे. आणि छोट्या छोट्या सवयी आहेत की त्यांच्या जीवनात बदल घडवणाऱ्या असणार आहेत. त्या सगळ्यात बेसिक सवय सांगतो की जेवताना आपण TV किंवा मोबाईलसमोर आपण पण जेवतो आणि आपले मुलं पण तसंच जेवतात. बरोबर आहे की नाही? मी पालकांना विचारतो की जेवताना मुलं आपल्या TV समोर जेवता का? मुलं बच्चे कंपनी आपण जेवताना मोबाईल समोर जेवता का? TV समोर जेवता का? तर सगळ्या पालकांना विनंती आहे की तुम्ही स्ट्रिक्टली जेवताना मुलांचा मोबाईल TV बंद करा. तुम्हाला मानसिकता इमोशनली असं वाटतं की मुलगा जेवत नाही, TV चालू असताना तर तो जेवतो तरी, पण आजची सोपं काम तुमच्या उद्यासाठी खूप कठीण गोष्ट होणार आहे. म्हणून जेवताना फक्त जेवण करा. एक सोपं बेसिक उदाहरण देतो. तुम्ही गाडीमध्ये पेट्रोल डिझेल भरायला जाता, त्यावेळेला तुम्ही कुठे बघतात? त्यावेळेला तुम्ही काटाकडे बघतात. आणि तुम्ही स्वतः जेवताना, तुमची मुलं जेवताना कुठे बघतात? तर ते ताटाकडे पाहतच नाही, ते TV कडे पाहतात, मोबाईलकडे पाहतात. त्याच्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेपासून शारीरिक सगळ्या स्थितीमध्ये खूप जास्त चुकीचे बदल घडत असतात. म्हणून ही बेसिक गोष्ट तुम्ही काळजी घ्या. तो जेवत नसेल तरी चालेल, पण TV समोर त्याला जेवायला अजिबात देऊ नका. ही एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट की आपले मुलं कसे फिजिकली ॲक्टिव्ह राहतील यासाठी किती काळजी घ्यायला पाहिजे. त्याचा अभ्यास बेसिकली आता इथे तर सगळे 4th पर्यंतचे स्टुडंट आहेत, 3rd पर्यंतचे स्टुडंट आहेत, त्यांचा अभ्यास हा सेकंडरी ठेवा. प्रायमरी त्यांचं फिजिकल ॲक्टिव्हिटी कशी चांगली राहील, कशी जास्तीत जास्त राहील याकडे लक्ष द्या. आणि तिसरी गोष्ट, जेवताना तुम्ही घरचेच पदार्थ कसे त्यांना देणार. चिप्स, कुरकुरे, जे काही पॅकेट फूड आहे घराच्या बाहेर बनतात ते कसे आपण अवॉइड करणार, त्याची कशी आपण मुलांना सवय लागू देणार नाही, या गोष्टीची आपण खूप काळजी घ्यायला पाहिजे. असं या 3 गोष्टी जरी केल्या तरी त्यांच्या आरोग्याचा पाया हा मजबूत राहणार आहे. आणि सिंधुरत्न शाळा आहेच की त्यांच्या सगळ्या करिअरच्या घडवण्याच्या पायामध्ये ते खूप मोठा मोलाचा त्यांचा हातभार लावत आहेत. मी सर्वात पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे अभिनंदन करतो आणि स्पेशली शाळेचे अध्यक्ष श्री सुरेशजी कुंडाने सर, लखवाणी सर, सगळ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मला आज इथे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं आणि मला तुमच्यासमोर येण्याची मला संधी मिळाली. पुन्हा एकदा आपले मनापासून आभार आणि आपल्या सगळ्यांचे अभिनंदन. धन्यवाद. Thank you, Honorable Sir, for your kind and motivational words. And also thank you for your valuable time and for fitness mantra. Because health is wealth, your motivational words will stay with us forever. Please give them a big round of applause. For our rich tradition, we begin today's program by singing the divine blessings through Aarti. I request all the honorable dignitaries, our today's chief guests, respected parents, to join us for this auspicious beginning.
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलो माँ जल्दी जल्दी चलो ना। हाँ बेटा, अभी जन्माष्टमी का उत्सव शुरू नहीं हुआ। हो गया होगा माँ, जल्दी चलो ना, नहीं तो मटकी भी फूट जाएगी। हाँ चलो चलो। भगवान थे बेटा। और इंसान? अच्छे इंसान। अच्छे इंसान कैसे माँ, बताओ ना मुझे। आओ मैं तुम्हें कृष्ण की कहानी सुनाती हूँ। कृष्ण का जन्म सत्य, न्याय और सदाचार की पुनर्स्थापना करने के लिए हुआ था। साथ ही साथ मानवता को सही राह दिखाने के लिए भी। और उस सफर में उन्होंने जो जो किया उसी में छिपा है अच्छा इंसान होने का राज। आओ मैं तुम्हें सुनाती हूँ। ये द्वापर युग की बात है, जब देवकी और वासुदेव जो कि कृष्ण के माता पिता थे, उनके विवाह से इस पर्व की शुरुआत हुई। और जो कंस थे, हम सब भी उसे कंस मामा बुलाते। वह देवकी के भाई थे
थे, यानी कृष्ण के मामा। कंस बहन से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी में वो बहुत खुश थे। नगाड़े बज रहे थे। नगर में उत्सव का माहौल था। मेरे परम मित्र शौरसैनी राजकुमार वसुदेव के साथ इन बहन देव के लग्न का तुम खुद निकालिए राजोशी। क्यों आते हैं? मैं ये विवाह इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारे भारतवर्ष के घराने सहते रह जाएंगे।
खुशी है, आपका स्वागत है। आप बड़े शुभ घड़ी पर पधारे। देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दीजिए ईश्वर। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने ही आना हूं नरेश। मैं तो कब से इस लड़के की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सौभाग्यवती भाव, अष्टपुत्रवती भाव। मथुरा नरेश, केवल मैं ही इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, काल भी इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि देवकी और वसुदेव का आठवां पुत्र तुम्हारा काल है और मथुरा को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करवाएगा। लगता है तेरा जीने से जीत कर गया है ऋषि। मैं यह आकाशवाणी सुन चुका हूं मथुरा नरेश, इसीलिए वर्षों से तपोवन में बैठा बैठा इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम दोनों भगाना नहीं, यह अत्याचारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भी झूठा है ऋषि, और तेरी आकाशवाणी थी। ऋषि झूठ नहीं बोलते मथुरा नरेश। तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देव की वसुदेव का आठवां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। बेटा, ऋषि वाणी से डरकर कंस ने उन दोनों को बंद तो कर दिया, पर उसके बाद जन्म हुए 6 बालकों को कंस ने जेल में ही मार डाला। ये 6 बच्चे मानो इंसान की 6 बुरी आदतें। जब ये 6 बुरी बातें हमारे मन से चली जाती है, तभी 7वें नंबर पर माया आती है और 8वें नंबर पर खुद भगवान आते हैं। ओ, अब समझा। मतलब अगर मैं ही गुस्सा और लालच छोड़ दूं, तो मेरे दिल में भी कृष्ण आ जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब समय हो गया है उस जादुई पल का, कृष्ण के जन्म का। भादों की अंधेरी रात है और अब कुछ चमत्कार होने वाला है। मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमुना तक ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ आओ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। सिंह राशि के सूर्य हैं, उदित उच्च के चंद्र। देवन दीनी दुंदुभी, तार मध्य स्वरमंग, तार मध्य स्वरमंग।
वासुदेव जी ने टोकरी में रखे कृष्ण को यशोदा मैया के गोद में रख दिया और उसकी जगह वो योग माया को लेकर वापिस आ गए। जेल में जाते ही योग माया रोने लगी। आवाज सुनकर सिपाही जो नींद में थे वो जाग गए और उन्होंने कंस को बुलाया। कंस आया और पर बेटी को नहीं मारा। नहीं बेटा, कंस बेटी को ही मारने लगता है। तभी वो हाथ से फिसल कर आकाश में जाती है। एक जोरदार बिजली कड़कती है और आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म दे चुका, अब तू ऐसी निर्दोष बातों का हत्या करना छोड़। आकाशवाणी सुनकर कंस आग बबूला हो जाता है। कृष्ण जहाँ भी है उसे ढूंढकर मारने का षड्यंत्र करने लगता है। और पंख माथे पे चढ़ा और होठों पर मुस्कान रे। आंसू बचाए बंसी बजाए हो रहा था शाम रे। और पंख माथे पे चढ़ा और होठों पर मुस्कान रे। आंसू बजाए बंसी बजाए हो रहा था शाम रे। जीतेगा वो बाप का हर संग्राम रे। हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अपना आगे तो बेटा एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पूतना नाम का। पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दे, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। आकाशवाणी के अनुसार जिसे मेरा काल होना है ये वही बालक है। सुंदर रूप बनाकर देखो, राक्षसी पूतना आई। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा।
पिलाने अपना दूध, पर कान्हा ने तो खेल खेल में हर ली उसकी सूझ। गिर पड़ी पूतना भारी भरकम, कान्हा की है जय जयकार। बुराई हारी अच्छाई जीती, सुखी हुआ सारा संसार। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंद।